Hello student, myself Professor Jayadav. In previous video we discussed about introduction and overview of cell. So today we are going to discuss about new topic, that is cell cycle. So first we start with definition of cell cycle. What is cell cycle? Cell cycle, a series of changes or sequential event which occur in dividing cell is called as cell cycle. ओके, तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल में जो चेंजेस होते रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं. तो सेल साइकिल इंक्लूड the period from beginning of one cell division to next cell division. Okay, so cell cycle में क्या होता है? सेल साइकिल कंसिस्ट टू फेजेस. कितने फेज कंसिस्ट करता है? दो फेजेस. तो सेल साइकिल consist two phases. One is I phase. I phase is also nothing but interphase or resting phase or preparatory phase. Okay, next is M phase. M phase is also called as mitotic phase or meiotic phase. उसको क्या बोलते हैं? M phase और mitotic phase. So we draw the diagram of cell cycle. So we draw one bigger box and another is smaller box. So this smaller box is called as I phase and this is smaller circle, semicircle is called as M phase. So I phase again divide into three sub phases: G1 phase, S phase and G2 phase. So M phase divide into two sub phases. One is karyokinesis phase and other is cytokinesis phase. So first we draw the karyokinesis phase.
This is karyokinesis. And this smaller one is called as cytokinesis phase. Okay, so first we discuss interphase or I phase. So I phase, I phase is called as resting phase, and it is also called as interphase. Okay, and I phase is also nothing but preparatory phase. Preparatory phase. Okay, these three names are of I phase. So why I phase is called as resting phase? Because in this phase cells are very active or highly active. So cells are highly active. Why cells are highly active? Because many metabolic activity takes place in I phase. So metabolic activity takes place. Okay, and why it is called preparatory phase? Because cell prepare themselves for further division. So cell prepare themselves for further division. Okay, so in I phase which activity takes place? Like cell growth takes place, plus replication of DNA. So DNA replication takes place in I phase or interphase. So interphase divide into three subphases. So interphase divide into three phases, into three subphases. कौन से हैं? G1 phase and other is S phase and next is G2 phase. So we discuss G1 phase in detail. Next is G1 phase. G1 phase is also called as gap 1 phase or growth 1 phase, and it is also called as post mitotic phase. Why it is called post mitotic phase? Because G1 phase जो है वो माइटोटिक डिवीजन के बाद आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं. So these three name of G1 phase. So अभी G1 phase में क्या क्या होता है? So G1 phase में क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं. तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, that is enzyme
एनर्जी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी मॉलिक्यूल। सो ये प्रोटीन एंड एनर्जी मॉलिक्यूल किसके लिए रिक्वायर होते हैं? सो दीज प्रोटीन एंड एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA. Okay, so these molecules required during replication of DNA. ओके, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होते हैं? ये प्रोटीन एंड एनर्जी मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं। एंड इन दिस फेज proliferation of cell organelles takes place. So proliferation of cell organelles takes place. क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स के proliferation होते रहता है। ओके, एंड अभी क्या होता है कि सेल कभी-कभी सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है और वो सेल क्या होता है? वापस से एंटर होते हैं G0 फेज में। क्या होते हैं? यहाँ पे एक छोटा सा मैं G0 फेज बना दे रहा हूं। ये है G0 फेज। तो G0 फेज सेल में withdraw from cell cycle and that stage is called as G0 stage, and G0 stage is also nothing but quiescent stage. And then again cell enter into G1 phase. So cell enter in G1 phase. And sometime in some cases cell क्या होते हैं कि G0 फेज में एंटर ही नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो सेल डिफरेंशिएशन इज आल्सो नथिंग बट परमानेंट सेल। तो क्या हो जाते हैं? परमानेंट सेल हो जाते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन form or resulting permanent cell. ओके, तो ये G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज इज आल्सो कॉल्ड एज गैप 1 फेज, ग्रोथ 1 फेज एंड पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि ये क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन के बाद में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन एंड एनर्जी मॉलिक्यूल का होता है, जो कि किसके लिए यूज करते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि एस फेज में होता है, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होता है। एंड इसको G0 फेज को क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। एंड समटाइम्स सेल विथड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल एंड इट एंटर इनटू G0 फेज, एंड दिस G0 फेज इज कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज। एंड सेल डिफरेंशिएशन रिजल्टिंग परमानेंट सेल। तो क्या करता है? जब यहां से अगर कोई भी सेल है, अगर वो निकल जाता है एंड वो वापस से एंटर नहीं होता G0 फेज में, तो ये क्या हो गया? परमानेंट सेल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? परमानेंट सेल फॉर्म करेगा। देन सेल एंटर इनटू S phase. So we discuss S phase. So S phase is also called as synthetic phase or synthesis phase. Why S phase is called as synthetic phase or synthesis phase? Because in the S phase, replication of DNA
DNA takes place. ओके, एंड जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एंटायर जेनेटिक मटेरियल गेट्स डुप्लीकेटेड, क्या हो जाएंगे और डबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। सो एंटायर जेनेटिक मटेरियल gets डुप्लीकेटेड। जब जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाएगा तो न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मींस एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस। सो एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, क्या होगा, न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाएगी। एंड न्यूक्लियस का साइज कितना हो जाएगा, द एनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज गेट्स डबल, सो इन द एस फेज हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज, क्या होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन आर also synthesized. And what is the role of histone protein in this cell? So histone protein क्या करता है, ये जो क्रोमोसोम को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो हिस्टोन प्रोटीन are required for organize the क्रोमोसोम, क्या करता है, क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज और टाइटली पैक करके रखता है। एंड इन दी एस फेज सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं। सो सेंट्रियोल्स are also duplicate in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। देन सेल एंटर इनटू G2 फेज। सो G2 फेज में क्या होता है, G2 phase is also called as GAT2 phase and it is also called as growth 2 phase and it is also called as प्री-माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि ये क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के पहले आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री-माइटोटिक फेज बोलते हैं। So G2 phase is also called as pre-mitotic phase. So in the G2 phase, synthesis of tubulin and स्पिंडल प्रोटीन, क्या होता है, स्पिंडल प्रोटीन, इसमें किसका सिंथेसिस होता है, ट्यूबुलिन का होता है सिंथेसिस एंड स्पिंडल प्रोटीन का होता है, जो कि क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। एंड इसमें क्या किसका होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, किसका होता है, आरएनए मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज होते हैं, कहां पे, G2 फेज में। एंड G2 फेज में किसका होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, किसका, डुप्लीकेशन
डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट होते हैं। कौन से सेल ऑर्गेनल्स? ऑर्गेनल्स से डुप्लीकेट होते हैं तो लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से? क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं। एंड इन दी G2 फेज क्या होता है? सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, यहां पे मैंने बोला था साइटोप्लाज्म में। एंड ये क्या करते हैं? दो सेंट्रोसोम्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? टू सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म। सो G2 फेज को क्या बोलते हैं? गैप 2 फेज बोलते हैं, ग्रोथ 2 फेज बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं? प्री माइटोटिक फेज। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है? माइटोसिस के पहले G2 आता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। एंड इसमें सिंथेसाइजेशन किसका होता है? ट्यूबुलिन का होता है, स्पिंडल प्रोटीन का होता है। एंड इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये क्या फॉर्म करते हैं? टू सेंट्रोसोम्स फॉर्म होते हैं। कहां पे? G2। अब यहां पे जो भी ये जो है, यहां पे क्या होते हैं? चेक पॉइंट होते हैं। G1 इन बिटवीन G1 एंड S यहां पे चेक पॉइंट होते हैं। कौन से चेक पॉइंट होते हैं? तो CTK एंड साइक्लिन। ये दो जो कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये चेक पॉइंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जब सेल अगर G1 में प्रॉपर ये सब हो जाएगा तो ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे? चेक करेंगे। एंड चेक करने के बाद सेल एंटर होगा S फेज में। एंड अगेन इन बिटवीन S एंड G2 देयर इज वन चेक पॉइंट एंड वापस से ये दोनों कंपाउंड रहेंगे और ये क्या करेंगे? चेक करेंगे। तब जाके सेल एंटर होता है माइटोटिक डिवीजन में। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट माइटोसिस। थैंक यू।